بخاری شریف میں حدیث ہے، میرے کریم خاتم النبیین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنائیں گے، انہی سے فتویٰ لیں گے، اور وہ ایسے جاہل ہوں گے اپنا بیڑا بھی غرق کریں گے اور سامنے والے کا بیڑا بھی غرق کر دیں گے۔ تو ایسوں کے پیچھے آپ مت چلے نا، مہربانی فرمائیں، اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، اور یہ رمضان شریف سے متعلقہ جتنی باتیں ہوتی ہیں ان کو ذرا قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور علماء نے 1400 سالہ امت نے جو فہم و ادراک اور اس بات کی وضاحت بیان کی اس میں سمجھیں گے تو پھر ہمارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اب ایک مسئلہ اور بھی ہے رمضان شریف میں، توجہ ہو تو عرض کروں آپ کی خدمت میں، وہ یہ ہے کہنے نے تراویحاں 8 نے جناب، جو نہیں فرما رہے کہتے بخاری جی لکھی ہے، ادھر دیکھیں میری طرف، کہتے ہیں بخاری جی لکھی ہے۔ میں کہا بھائی گال سنو میری گال، پتہ کی ہے سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنے والی ہے نا کہ نبی پاک کے زمانے میں اس طرح 20 رکعتیں تھی نہیں، آواز کمزوروں والی ہے، اس طرح 20 رکعتیں نہیں تھی، یہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ قیام اللیل فرماتے تھے۔ اب ہوا کیا کہ نبی پاک نے 3-4 دن کے لیے اپنے گھر جلوہ گری فرمائی، آپ مسجد میں تشریف نہیں لائے۔ آپ جب گھر تشریف لے گئے نا تو صحابہ کرام نے کہا حضور آپ رمضان میں مسجد میں جلوہ گری فرماتے تھے اور یہاں آ کر آپ یہ فرمایا کرتے تھے عبادت ہم آپ کے ساتھ ہوتے تھے، تو میرے کریم یہ ارشاد فرمائیے آپ گھر کیوں تشریف لے گئے؟ جملے کا لطف لیجئے گا، میرے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا اس لیے میں گھر چلا گیا کہیں یہ عبادت جو قیام اللیل کی تم پر فرض نہ ہو جائے، میں اپنی امت پر آسانی اور شفقت چاہتا، اس لیے نبی پاک علیہ السلام گھر میں تشریف لے گئے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اگر نبی پاک آتے رہتے تو حضور کی اس پسندیدگی کو دیکھ کر شاید عمر پر یہ فرض یا واجب کر دی جاتی، اس لیے میرے حبیب پاک علیہ السلام آپ گھر میں جلوہ گر ہو گئے۔ یہ دوسری بات، اب تیسری بھی سنیں گے حضرات، آپ ذرا بڑے غور سے سننے والی بات۔ تیسری بات، حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پردہ فرمانے کے بعد صدیق اکبر کا دور آیا، صدیق اکبر کے بعد فاروق اعظم کا دور آیا۔ فاروق بیٹے بیٹھ جائیں پلیز پلیز تشریف رکھیں، مہربانی آپ۔ فاروق اعظم کے زمانہ اقدس و انور کے اندر غور سے سنیے گا ہوا کیا، لوگ اب چونکہ اسلام بڑھ رہا تھا، پھیل رہا تھا، 22 لاکھ مربع میل پر یہ اسلام پھیل چکا تھا، اب لوگ مدینہ شریف میں بھی آتے تھے، اب رمضان شریف میں ایک زیادہ ہی رجحان ہوتا ہے، اب جب لوگ بڑی کثرت سے جمع ہوتے نا تو اب یہ تھا کہ رات کو قیام اللیل کریں۔ اچھا سارے مسجد میں کھڑے ہیں، کوئی الگ پڑھ رہا ہے، وہ الگ پڑھ رہا ہے، وہ الگ پڑھ رہا ہے، وہ اپنے حساب سے لگے۔ فاروق اعظم نے فرمایا اے سارے جنے رال کے میری گال سنو نا ایک باری، وہ سارے آئے، آپ نے فرمایا آپ جو کلیاں کلیاں کرنے تو کی خیال ہے آپ کٹھیاں نہ عبادت کر رہی ہے؟ سمجھ آ رہی؟ یہی بات ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر مسلمان کسی مسئلے پر اکٹھے ہو جائیں وہ جائز ہو، قرآن و حدیث کے مطابق ہو، اسی کو اجماع کہتے ہیں اور اس پر عمل کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ اب یہ تو صحابہ اور اہل بیت کا اجماع ہوگا جس پر سبھی متفق ہو کر کسی نے انکار نہیں کیا۔ اچھا اب اگلی بات، کہتے ہیں اپنا سارے کٹھے ہو کے جماعت دے نال ہی پڑھیا کریں گے، چلو نبی پاک نے تو ہم پہ فرض نہیں کی لیکن کم از کم ہمیں تو ایک طریقہ متعین کرنا چاہیے جو قیامت تک کے مسلمان ایک طریقے پر جمع ہو جائیں۔ اگر کوئی کہنے اے کیڑا ضروری جو نبی پاک نے نہیں کیتا تو یہ کیوں پہ کر دینے، تو میں کہا نبی پاک نے تو قرآن بھی کتابی شکلیں نہیں دیتا سی تو پھر کتاب اتنے کیوں جمع ہو گئے ہو؟ یہ سے یہ تو امت دی آسانی سی، تو میں کہا 20 رکعتاں بھی امت دی آسانی سی نا، یہی تو بات عرض کر رہا ہوں بھائی، یہ امت کی آسانی کے لیے کیا ہے۔ اچھا اگلی بات بھی سنیے گا، اب یہ 20 رکعتیں کیسے آ گئی؟ اس میں 2 مین وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ، حضرت فاروق اعظم نے کہا نبی پاک کی ازواج طیبات جتنی حضور کی بیویاں ہیں ہماری ماں، ان سب سے پوچھو کہ نبی پاک رمضان کے دنوں میں کتنی کی عبادت فرمایا کرتے تھے۔ اب ساری ازواج طیبات سے جب پوچھا گیا نا تو ایوریج رکعت 20 رکعتیں نکلی۔ ایوریج رکعت کتنی نکلی؟ 20 رکعتیں۔ تو فرمایا ان 20 پہ ہم متفق ہوتے ہیں۔ اور دوسری وجہ ایک تو یہ تھی کہ سب سے جب کومنٹس اکٹھے کیے نا تو 20 رکعت ایوریج نکلا تو 20 پر اتفاق کیا۔ دوسری وجہ یہ تھی قرآن مجید اور یہ 30 دن روزے اور 20 تراویحاں اور ہر تراویح میں اگر ایک رکوع پڑھا جائے آخری 20 جو چھوٹی صورتیں وہ چھوڑ کر، تو اگر 30 روزے 20 تراویحاں ہر رات کی جائیں، ایک ایک رکوع پڑھا جائے، ادھر سے رمضان ختم ہوتا ہے، ادھر سے رب کا قرآن بھی ختم ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت۔ تو یہ دوسری ایک مطلب اشارہ ہے اس کے اندر کہ یہ 20 رکعتیں ہی کیوں ہیں۔ اور پھر اگلی بات بھی سننا، توجہ ہے حضرات کی کہ کوئی نہیں ہے؟ کئی بندے بالکل سبحان اللہ نہیں فرما رہے، سبحان اللہ بڑھ دی ہے 20 رکعتیں پڑھ ہو جانا ہے تو مسئلہ نہیں ہے۔ اب یہ سنیے بات کیا ہے۔
रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सहाबा ने और बिलखुसूस हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला आपने उम्मत को जमा किया और इस उम्मत के अंदर जितने सहाबा और अहले बैत सारे मुत्तफिक हो गए, किसी ने इनकार नहीं किया। इसलिए ये 20 रकात नमाज तरावी ये सुन्नत है। क्या है ये? सुन्नत है। अगली बात भी सुनिएगा, ये असल मसला है। अब हदीस क्या पेश की जाती है? तरावियां 8 ने, तो मैं क्या 8 होंदियां ते सहाबा कराम चो कोई तो कहंदा भी 8 भी हैगियां ने। अच्छा मैं क्या कितने ने? वो मैनू भी दसो ना जी, ये कितने ने? अगे बुखारी शरीफ है जी। अब आपको मैं ओपन चैलेंज करता हूं, आप बुखारी शरीफ खोलें, वही हदीस निकालें जिसके अंदर ये लिखा कि 8 रकाता ने तरावियां दियां। मैं क्या उत्थे लफ्ज़ तरावी विखा दो। तुम्हारी मर्जी है जनाब, सुभान अल्लाह ही बोल गए हो जनाब। ओपन चैलेंज, आप लफ्ज़ तरावी दिखा दें। और दूसरी बात ले, इस तो भी बड़ी गल करन लगे, वो पता क्या है? 8 रकातें, उसके अंदर ये लफ्ज़ मौजूद है कुल्ला लैलतिन, कि नबी पाक हर रात 8 रकातें पढ़ते थे। तो मैं क्या हर रात रमजान दी नहीं ना, रमजान तो एक महीना होता है, तो हर रात वाला की मसला है? कहता है तो नहीं मैनू पता। तो मैं क्या पता होंदा तो सुननी ना होंदा। ये बात समझने की कोशिश करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। ये तो मेरा इतना मशहूर है, जब मैं इराक जाता हूँ और शाम जाता हूँ तो वहां पर जितने तबकात के लोग आते हैं, बिलखुसूस बांग्लादेश, इंडिया से, साउथ अफ्रीका से, यूके से, वो भी मैंने कहते हैं आ बोले ना जरा स्वाद बड़ा होता है। ये दीन की मोहब्बत है, अल्लाह ने लोगों के दिलों में मोहब्बत डाली है। साडा की कमाल है, मैं नीमा मेरा मुर्शिद उच्चा, तो मैं उच्चियां दे संग लाई हूँ, सदके जमा उना उच्चियां तो जिन्ना नीमियां नाल निभाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, मुफ्ती मोहम्मद समर अब्बास कादरी अत्तारी साहब। कादे साडे नारे मालका दे नारे होने चाहिए ने। अब जरा मसले को सुनिए। 8 रकातें, तो मैंने कहा ये 8 रकातें ये कहाँ हैं? उसमें लफ्ज़ तरावी नहीं है। पहली बात है, ये बुखारी शरीफ में रिवायत है, भी मैं सुना दें, है बुखारी शरीफ में, लेकिन वहां तरावी का लफ्ज़ नहीं है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर कुल्ला लैलतिन का लफ्ज़, नबी पाक हर रात 8 रकातें पढ़ते थे। तो रमजान तो एक महीना थे, हर रात कितना है हुंदा है तो नहीं मैनू पता। मैं कह रहा फिर मैं तेनू दसना, तमाम उलमा ने लिखा है कि वो जो 8 रकातें थी वो नबी पाक की तहज्जुद की रकातें थी जो हर रात को पढ़ा करते थे। और हम पर 5 नमाजें फर्ज थी। मेरे नबी पाक के लिए तहज्जुद पढ़ना भी लाज़िम और जरूरी था। अल्लाह ने कुरान में फरमाया फतहज्जद बिही नाफिलतन लका असा अन यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा। फरमाया महबूब हमने आपके लिए ये जो तहज्जुद की नमाज है इसका इजाफा आपके लिए कर दिया है, आपने ये भी पढ़ना है। और इसका फायदा क्या होगा? फरमाया ये ऐसी चीज है कि अल्लाह करीम आपको इस तहज्जुद पढ़ने के बदले मकामे महमूद अता करेगा। और यही मकामे महमूद है। जब मेरे हबीब से पूछा गया हुजूर ये मकामे महमूद क्या है? फरमाया इसी मकाम पर जब अल्लाह मुझे अता करेगा तो मैं वहां पर सजदा करके अपनी उम्मत की शफाअत करूंगा। समझ आ रही है? ये मकामे महमूद है महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अता किया। तो मेरी जान यहाँ पर तो हर रात के लफ्ज हैं और ये तो हर रात में तहज्जुद की बात हो रही है। तो आप तरावियां वाले पास लेके आ गए हैं। आवाज कमजोरों वाली, आवाज कमजोरों वाली। मैंने 2 हदीसें इसलिए बयान की, एक तो रोटी खान पीने वाला मसला हल हो जाए, दूसरा तरावियां वाला हो जाए। पढ़नी चाहिए। और ये 20 रकात अगर रोजाना पूरी कर लेना तो जैसे उलमा फरमा बस औकात लोग पूछते ने ए जी तरावियां तो बगैर रोजा कोई नहीं होंदा। तो मैं क्या सालन तो बगैर रोटी कोई नहीं खा होंदी? कहता खा तो होंदी, मजा नहीं आउंदा। मैं क्या इदा ही रोजा हो जाता पर स्वाद नहीं आउंदा। अगर स्वाद लेना तो तरावियां पढ़ लो। हाँ आ गल है। मैं क्या आई गल आ। तो ये एक चीज दूसरे के साथ कनेक्ट होती है ना, तो जब ये कनेक्ट हो जाएगी तो आपको ज्यादा बरकत और फजीलत मिल जाएगी। अजीज़ाने गिरामी, ये थे 2 खास मसले जो आपकी खिदमत में डिस्कस किए। अगर तवज्जो हो तो आगे भी चलें, आपकी खिदमत में कुछ गुजारिशात पेश करें। जब ये रमजान मुबारक का महीना आता, जैसे हमारे अल्लामा अली रजा बगदादी साहिब किबला और इनकी टीम, इन्होंने ये इज्तिमाए इस्तिक़बाल रमजान किया और आज हम बहुत कोई सुनेंगे जैसा कि सुन भी रहे हैं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी यही फरमाया करते थे। हजरत सैयदना सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो सहाबी हैं कि जो तवील उम्र सहाबी हैं। उन्होंने लिखा कि तकरीबन 300 साल के करीब इस सहाबी की उम्र हुई थी। इसकी कभी कभी मुझे मौजू देना, मैं इनकी हिस्ट्री मुकम्मल आपको सुनाऊंगा कि हजरत सलमान फारसी का मकाम क्या है। ये ऐसे ही नहीं, नबी पाक ने फरमाया सलमान मिन्ना अहलुल बैत, सलमान जे तू सारा कबीला ते घर बार छड़िया है ना ते असां भी लज पा ला, मैं भी तेनू अपने अहले बैत दा बंदा बना छड़िया है ना। मेरे नबी ने
को अपनी अहले बैत का फर्द करार दिया है। हाँ, ये हजरत सलमान फारसी का ये मकाम है। खैर, हिस्ट्री इनकी बहुत लंबी है, तवज्जो फरमा रहे जी आप हजरात, जरा थोड़ा मुझे टाइम दीजिए, बात बड़ी मजे की आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके बारे में सलमान फारसी रदी अल्लाहु अन्हु आप फरमाते हैं, खतबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर हमें ना खिताब फरमाया करते थे। तवज्जो है, कब फरमाया? मिन आखिर शाबान, फरमाया शाबान का जब आखिरी दिन होता ना तो नबी पाक हमें खिताब फरमाया करते थे। और को जो बिना हुए आज हजूर दी सुन्नत साडा अमल हो गया। समझ आ रही है मेरी बात की? और यकीन कीजिए, मैं अल्लामा अली रजा साहब को बता रहा था कि मैं पिछले 4 दिनों जुमा पढ़ा के मैं सिंध गया हुआ था, 4 रोजा दौरा था हमारा सिंध का। तो राती 3 बजे मैं टुरिया तो सवेरे 3 बजे इतने पहुंचा, हैदराबाद थे हम रात, और अपनी गाड़ी पे गए हुए थे। इतने पहुंचा बाद थोड़ी अख लाइए तो फिर अख थोड़े नाल ला लईए। समझ आ रही है ना जी? अख भी चंगी जगह ते लगे तो फिर स्वाद आता है ना। हाँ, हम जब पढ़ते थे ना फिजान दिना फैसलाबाद, तो एक मुंडा सी ना, वो कहता उस्ताद जी दिल नहीं करता पढ़न नो ना, दिल नहीं लगता। उस्ताद मुस्कुरा पे फरमाने के किथे दिल लाया जो इत्थे नहीं लगता। ये बस औकात बुजुर्गों की बातों में सारा पैगाम होता है भी काका ओथे दिल थोड़ा ला, इत्थे बहुत आला। तो खैर, फिर मैं आपके खिदमत में हाजिर हो गया हूँ लंबा तवील सफर करके, और ये टाइम बिल्कुल नहीं था। अली रजा साहब का हुक्म था कि हमने ये प्रोग्राम करना है, तो मैं क्या फिर आही दिन रखो, औखा सौखा मैं अब पढ़ पाऊंगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आज आपकी ज़ियारत की मुझे बड़ी खुशी हुई है, और इतनी बड़ी तादाद में आप तशरीफ लाए। तो नबी पाक की सुन्नत के मुताबिक एक दिन पहले हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। तवज्जो आपकी मेरी तरफ हो सकती है, आने जाने वाले ये मेहमान आ रहे हैं, और इंशाल्लाह ये बैठ भी है। अच्छा कहिए आप भाई, ये पुलिस वाले वेख के डर देख लो, ओ भाई वो अपना पीर भाई ये की हो गया ਤੁਹਾਨੂੰ? वो अल्लाह जो बंदियो सिक्योरिटी करना है ने, तुसी एवें डरे बैठे हो, की हो गया ਤੁਹਾਨੂੰ? हाँ, ये अपने यार ने जनाब, वाह भाई वाह। इस वास्ते तुसी सारे बैठो इंशाल्लाह। ये देखो ना, हर जनाब मस्जिद के और हर हमारा जो मदरसा उसके दरवाजे पर खड़े होते हैं, अल्लाह इन्हां दी हिफाजत करे, असीं तां दुआ कर सकते हैं ना जी। ये साडे भरा ने, साडे यार ने, अल्लाह इन्हां नूं खैर बरकत अता फरमाए। तवज्जो कीजिए जरा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जब खिताब फरमाते तो क्या कहते? आप फरमाते कद अवल्लकुम शहरुन अज़ीमुन, लोगों तुम्हारे ऊपर एक अजमत वाला महीना है जो साया करने आ रहा। अजमत वाला महीना है जो साया करने आ रहा है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी अजमत क्या है? फरमाया फीही लैलतुन खैरुम मिन अल्फ शहर, उसमें एक रात है, अगर कोई उसमें इबादत करने में कामयाब हो जाए तो अल्लाह 1000 महीनों की इबादत का सवाब अता फरमा देता है। और यहाँ पर मैं एक लतीफ बात भी अर्ज करूँ जो अभी तक नहीं बोले, ताकि उनको भी ज़ौक़ मिल जाए। ये तमाम मुफस्सिरीन ने यहाँ और शारी ने हदीस ने सवाल उठाया कि अगर हमें वो बरकत वाली रात लैलतुल क़द्र मुयस्सर आ जाए तो हम कितनी इबादत करें कि हमें यह कहा जाएगा कि हमने इस रात इबादत कर ली है। यानी घंटा 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे किन्नी को देर असी जागांगे तो यह आख्या जाएगा कि ए बंदे ने रात जाग ली है तो इन्हें इस रात की बरकत मिल गई है। जवाब सुनिएगा जरा। फरमाया जिसने उस बरकत वाली रात में, वो जो आखिरी ताक रातों में है रमजान शरीफ के, ईशा की नमाज पढ़ ली, समझ लो अल्लाह ने उसको रात की फजीलत अता फरमा दी। अल्लाहु अकबर। तवज्जो है, जिंदाबाद। अब बात समझ रहे हैं आप मेरे अजीज मेरे भाई जितने हैं, जिसने ईशा की नमाज पढ़ ली। इधर देखो मेरे अल भाई, मैं तुहानू गल्लां समझावां जरा। ए मुंडियो इधर देखो ना मेरे अल। लो वो पैसे सिटना है यार, तुसी टेंशन क्यों ले गए हो यार? इधर मेरे अल देखो, अल्लाह दे बदे हो। हाँ, आप जरा इस बात का मजा लें और लुत्फ लें ताकि फकीर आपकी खिदमत में बात अर्ज कर सके। मेरे दोस्त, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया अजमत वाली रात है। सुभान अल्लाह भी फरमा दे, जरा आपकी बात हो रही है और ये ना आपका रब्त खत्म हो जाएगा, रब्त खत्म हो जाएगा। अब इस बात को जरा सुने और समझें मेरे भाई। नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया अजमत वाली रात है, फजीलत वाली रात है, बरकत वाली रात है। अगर इसमें कोई इबादत करे तो कितने महीनों का सवाब है? बोलो 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 सारे, कितने महीनों का? अल्लाह अकबर, 1000 महीनों का सवाब अल्लाह अता फरमाता है। और अगली बात जो इरशाद फरमाई, जिसकी मैंने वजाहत की है कि अगर कोई ईशा की नमाज पढ़ ले तो खल्ला के आलम उस बंदे को भी उस रात की बरकत अता फरमा देता है। फिर सवाल हुआ, अगर कोई ज्यादा इबादत करना चाहे, फरमाया कम अज कम 2 नफल पढ़े, दरमियाना करे तो 100 नफल पढ़े, ज्यादा करे तो बेशक 1000 पढ़े।
तीसरी बात सुनिएगा, हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा सिद्दीका बिनते सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका, आपने पूछा मेरे आका अगर ये रात हमें मिल जाए तो मुझे इस रात में क्या पढ़ना चाहिए? समझ आ रही है? अगर ये रात मिल जाए, मुयस्सर आ जाए तो हमें क्या पढ़ना चाहिए? तो महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया ये पढ़ना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी या करीम। समझ आ रही? ये दुआ बाकायदा तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तालीम इरशाद फरमा रहे कि इस रात के अंदर ये पढ़ते रहना कि या अल्लाह तू ही है जो अफ़्व करम करने वाला है, रहम करने वाला है, हम पे रहमत फरमा दे। और फरमाया पहले आसमान पर अल्लाह की रहमत निदा करती है कोई मगफिरत का तालिब कि आज बख्श दिया जाए, है कोई रिस्क का तालिब कि आज हलाल रिस्क के दरवाजे खोल दिए जाएं, है कोई ऐसा बंदा कि जो दुखों का मारा हो कि हमसे सवाल करे और हम सुखों की बारिश कर दें। ये बाकायदा तौर पर हदीस शरीफ में कहा जाता है। अजीजों, इस वास्ते ये रमजान नबी पाक खिताब कर रहे हैं और फरमा रहे हैं कि बरकत वाला एक रात 1000 महीनों के बराबर, ऐसा बरकत वाला महीना। आगे मेरे नबी ने जो इरशाद फरमाया बड़ी सुनने वाली बात है, फरमाया इसमें मोमिन का रिस्क बढ़ा दिया जाता है। अच्छा, अगर हम गौर करें तो मोमिन का रिस्क कैसे बढ़ता है? जिन्हें कभी भी खजूरा नहीं खा दिया होंगे रमजान खा लेता जे, फ्रूट किते ना किते लभ भी जाता जे, आप पकौड़े कदी कदी खाए, रोज़ां च हर रोज लभदे जे, पानी दी शिकंजवी आला ते रूह अफजा विच। नहीं मजा आया यार, बोलो तो सही ना। अगर हम गौर करें तो यकीन फरमाइए रिस्क का दरवाजा खुल जाता है, अल्लाह ताला मोमिन का रिस्क बढ़ा देता है। अच्छा, फिर ये तो रिस्क है हमारी एतबार से, सहरी अफ्तारी के एतबार से। और अगर देखा जाए कई गरीब बंदे होते हैं, उनका रिस्क कैसे बढ़ता है? फरमाया फितराना अदा करो तो क्या होगा? फरमाया ये गरीब जो बिल्कुल गरीब है उसको जब फितराना देते हो, फितराना देने की 2 लॉजिक बयान की गई। फरमाया एक तो ये गरीबों की ईद है कि जब तुम हेल्प करते हो तो वो भी को गोश्त खा लेंगे, को कपड़े ले लेंगे, को मौजा मार लेंगे, तो उसके रिस्क में बरकत हुई कि कोई ना हुई? जो नहीं फरमा रहे आप हजरात। तो ये देखो उस गरीब का रिज़्क भी बढ़ गया। और फिर अगली बात, मैं यहाँ एक बात और लगे हाथों अर्ज कर दूं, ये जो फितराना होता है ना, ये पता किस लिए होता है? इसके भी एक सबब है। एक तो ये कि ये गरीबों की ईद है, और दूसरी वजह ये है कि ये जो फितराना होता है हमारे रोजों के अंदर जो कमी कुताही होती है ना, और वादा घाटा, समझो ना यार, हमारे रोजों के अंदर वादा घाटा हो जाता थोड़ा जा। फरमाया ये जो कमी कुताही होती है ना ड्यूटी अदा करने में, जब बंदा फितराना अदा करता है तो अल्लाह कमियां कुताहियां सारियां दूर करके पूरे रमजान के रोजे कबूल फरमा लेता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, इश्क़ मोहब्बत, इश्क़ मोहब्बत। और मैं यहाँ पर आपकी खिदमत में ये बात अर्ज कर दूं, ये जो फितराना होता है ना, थोड़ा औखा मसला जे, ऐसे हो सकता कि आप थोड़ा तवज्जो घट करो, लेकिन मैं कहूँगा कि तवज्जो थोड़ी ज्यादा करे। जो फितराना होता है ना